Hello dear students, this is Rebecca Deal from RA Knowledge Spot. Dear student, today we have to start exercise number 3.1 of class 10th, that is from Punjab textbook, and the name of the chapter is variation. The very first topic, actually we have to discuss many variety of topics in this chapter, but specifically we have to start 3.1 like ratio, relevant to ratio. Now what is the ratio actually? In the lower grades, of course you have read about this concept, but I just want to give a review of ratio. A comparison or the relation between two similar quantities is called ratio. Like if there are two quantities and if they are both of them are same, like if I'm saying like 2 kg and 3 kg, the both quantities are same, having the same unit, then we can find the ratio between these two quantities. Number two, a ratio has no unit. Whenever you find the ratio of two numbers, finally the ratio, when you're actually calculating the units, you will just having no unit of this. Why? Because if I will say there's 2 kilometer and 5 kilometer, if I'm going to write this in the form of fraction, because whatever the thing that is the written in the form of ratio, we can also write in the form of fraction. So you can see the both units will be cut down. So we will say there is no unit of a ratio we have. Then order of the ratio is very important. Means ये अगर ratio में कोई चीज़ लिखी जाती है x ratio y, तो उसको हम नहीं लिख सकते. मीन्स ये चीज़ ऐसे कभी भी नहीं हो सकती. मतलब अगर हम लिखते हैं a ratio b इज़ नॉट इक्वल टू b ratio a, इस तरह से ये चीज़ ऐसे नहीं लिखी जा सकती. वाई? बिकॉज अगर हम लिखें 1:2 और ऑन द अदर हैंड अगर इसको मैं लिखूँ 2:1, तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे दे विल नॉट गिव यू द सेम आंसर, बिकॉज 1/2 और 2/1 दे आर नॉट सेम. 1/2 का मतलब है 0.5 और 2/1 का मतलब क्या है, 2 है. इट मीन्स जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो सेम कभी भी नहीं हो सकते. नंबर 2, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है रेशो का, दैट इज़ कॉल्ड एंटीसीडेंट, और जो सेकंड एलिमेंट है ये है कॉन्सिक्वेंट. Okay, this is nothing at all. Okay, just leave it. First element is called antecedent. This could be possible for your MCQs, so you should know what is this the first number and what we call the second number, and the second number is consequent. और रेशो जो होती है also can be written in the form of fraction. और अगर आप अपनी बुक में देखें, so you have the proper definition here. तो यहाँ पर ये देखें, a relation between two quantities of the same kind. This is something very important, that they should be same, means measured in the same unit, is called ratio. If a and b are two quantities of the same kind and b is not zero, like the denominator should not be zero, then the ratio of a ratio b is written as this. मतलब यहाँ तक इसकी डेफिनेशन आप लिखें. और ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन अ रेशो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मीन्स a ratio b इज़ नॉट इक्वल टू b ratio a. और जो फर्स्ट एलिमेंट है एंटीसीडेंट है, सेकंड को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, एंड द थर्ड रेशो हैज़ नो यूनिट्स. ये होगी इसकी कुछ डिटेल्स. अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज में. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशो a ratio b एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंपलेस्ट के हैं या लोएस्ट, मतलब उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में, यानी कि जब तक उसको सॉल्व हो रहा है उसको हम सॉल्व करते रहेंगे, तो वहाँ तक जाना है. इसका पहला क्वेश्चन देखिए, ₹750, ₹1250. अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास जो दोनों जो नंबर्स हैं, ये इस वक्त इनके यूनिट्स जो हैं बिल्कुल सेम है. दिस इज़ रुपीज़ एंड दिस इज़ ऑल्सो रुपीज़. इट मीन्स हम इसकी जो रेशो है फाइंड आउट कर सकते हैं. तो देखें कि अब सबसे पहले आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके, हम लिखेंगे रुपीज़ रेशो रुपीज़. जो फर्स्ट है 750 और ये है 1250. अगर दोनों तरफ देखें तो 0 से कैंसिल होगा, डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं. नो नीड टू शो इट इवन. समटाइम यहाँ पर साइड पे लिखा जाता है कि अब हमने ये नेक्स्ट स्टेप कैसे हम यहाँ पर पहुँचे हैं, तो आप लिख सकते हैं जैसे 0 तो 0 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं डिवाइडेड बाय 5, फिर दोबारा डिवाइडेड बाय 5. तो ना भी मेंशन करें तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं. तो देखिए 5 1 5, 5 5 25, 5 2 10 एंड 5 5 25, 5 3 15, 5 5 25. मीन्स आप लोगों ने इसको किसी ऐसे नंबर से इसको डिवीजन करनी है जो कि दोनों को करे, मतलब पता हो कि इसको करें और इसको नहीं करे, ऐसा नहीं हो सकता. दैट नंबर शुड बी सिंगल एंड इट शुड डिवाइडेड बोथ द नंबर्स एट अ टाइम. ओके, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि इसको रेशो की फॉर्म में भी लिखें, इन अ फॉर्म ऑफ लाइक फ्रैक्शन. ये तो रेशो हो गया, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3/5 ऐसे भी इसको लिख सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट देखें इसका 450 सेंटीमीटर 3 मीटर. हमें पता है कि 1 मीटर में, ओके, नंबर 1 देखें कि दे बोथ आर नॉट सेम एक्चुअली, लाइक मीटर एंड सेंटीमीटर नॉट सेम, बट स्टिल दे आर आस्किंग टू फाइंड यू द रेशो. पर हम इसका रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं. वो कैसे, कि आप ये देखें कि वी कैन मेक मीटर इंटू सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मीटर बनाया जा सकता है. अब ये कैसे इसको बनाएंगे, आप देखें कि हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स हैं,
अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, 2 मीटर विल गिव्स यू 200 सेंटीमीटर, देन 3 मीटर विल गिव्स यू 300 सेंटीमीटर्स, बट वी एक्चुअली नीड 3 मीटर, सो विल राइट 3 मीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर्स। और ये ऑलरेडी जो टर्म है सेंटीमीटर्स में है, हम एक शॉर्टर यूनिट में जा रहे हैं, मतलब हमारे पास मीटर एक जो है ग्रेटर यूनिट्स होते हैं आपके पास, और सेंटीमीटर जो है एक, हम वैसे मीटर्स में भी जा सकते हैं, बट व्हाट वी शुड एक्चुअली डू दैट इज़ मोर कन्वीनियंट, वो चीज़ जो हमें ज़्यादा आसान लग रही है, जो ईजिली हम कर सकते हैं, वी शुड गो टूवर्ड्स दैट पाथ। ओके, नाउ वी राइट सेंटीमीटर रेशो सेंटीमीटर। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है जिसको हमने ऑर्डर बोला था डेफिनेशन में, द ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखें, अगर क्वेश्चन को गौर से देखें तो पहले ये चीज़ है और बाद में ये नंबर है। इट मीन्स आप पहले 300 नहीं लिख सकते, यू हैव टू हैव राइट 450 सेंटीमीटर फर्स्ट। ठीक है, ये चीज़ थी ऑर्डर की जो बात हो रही है। मीन्स अगर यहाँ 1250 तो 1250 को यहाँ पर लिख देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। जो नंबर पहले है उसको पहले ही लिखेंगे। कन्वर्जन के बाद भी आप देखें कि पहले आपने इसको लिखना है, यहाँ पर ये जो है ये तो 450 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसके यूनिट सेंटीमीटर हैं, और इसको हमने सेंटीमीटर बना दिया है, दैट इज़ 300। अब दोनों के देखें एक एक जो ज़ीरो है, हम इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, वी कैन कैंसिल, विल गेट 45/30। अब कोई ऐसा नंबर ढूंढे जो दोनों को कैंसिल करे, दैट इज़ 5 9 से 45, 5 6 से 30। उसके बाद एक और नंबर ढूंढे जो दोनों को दोबारा से कैंसिल करे, दैट इज़ पॉसिबल नंबर 3 3 से 9 एंड 3 2 आर 6। अब ये इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन में पढ़ें तो लिखा था लोएस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म, इस बात का मतलब है जब तक आप कैंसिलेशन करते रहेंगे जब तक हो रही है, और जब आपको लगे कि देयर इज़ नो नंबर एग्जिस्ट विच कैन कैंसिल बोथ द नंबर एट अ टाइम, सो यू विल लीव दैट एज एन कंसिडर इट एन आंसर। ओके, अब ये इसका आपका आंसर है, और इसको लिखेंगे 3:2, 3/2। दैट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन टू राइट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट देखें, दैट इज़ 4 kg। इसमें आपके पास क्या है, 4 kg, 2 kg और 750 ग्राम्स। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर आप लिख दें कि हमें पता है। अब इसको भी हम सेम बनाएंगे बिकॉज यू कैन मेक इट सेम। 4 kg में आपके पास 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम, और अगर 1 kg 1000 है तो 2 kg 2000 है, तो 4 kg क्या होगा, 4000 ग्राम्स होगा। सबसे पहले थोड़ा ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये तो एक सिंपल kg की फॉर्म में चीज़ दी हुई है, और ये कुछ मिक्स है जिसमें kg और ग्राम्स दोनों हैं। सो हम इसको एक जो हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट है, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में लेके गए थे, सिमिलरली यहाँ को kg को ग्राम्स में लेके जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये पता है कि ये इसके इक्वल है, हमने इसको ऐसे लिख दिया। उसके बाद 4 kg जो है हमारे पास क्या है, 4000 ग्राम्स। अब इसको कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले। अब देखें कि ये 2 kg है, इसका मतलब 2 kg तो 2000 है, और ये तो पहले से ही ग्राम्स में, इसको कुछ नहीं करेंगे। हमने आपको अलजबरा में देखें, हम आपको याद रखने की टेक्निक बताती हूँ। अलजबरा में हम पढ़ते हैं कि अगर बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं। सिमिलरली जब हमारे यहाँ पर यूनिट्स सेम हो जाएंगे तो फिर हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब ये kg में है जिसको आप ग्राम्स में लेंगे, ये ऑलरेडी ग्राम्स में है, कि 2000 ग्राम्स हो गया और ये भी ग्राम है, तो इन दोनों के यूनिट्स बिल्कुल सेम हो गए, तो इनको क्या कर दें, आप ऐड कर दें। अब इसकी सारी सिंप्लीफिकेशन या कन्वर्जन आपको यहाँ पर मिल जाती है, और ये इसको तो सिंपल आपने 4000 कर देना है। अब यहाँ लिखिए ग्राम्स रेशो ग्राम्स, तो इसका 4000 है और इसका अभी सिंप्लीफिकेशन के बाद ये नंबर आया है। अब ये 0 को 0 से कैंसिल कर दें, यू विल लेफ्ट विद दीज 2 नंबर्स। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को एट अ टाइम कैंसिल कर दे, दैट इज़ 5 8 से 40, 0 एज इट इज़, 5 5 से 25 एंड 5 5 से 25। दो स्टूडेंट्स बेसिकली जो कह लें कि बहुत वीकर हैं अगर मैथ्स में, और उनको ये चीज़ नहीं आती, सो यू शुड हैव योर कैलकुलेटर, जस्ट राइट दिस नंबर 275, उसको लिखें कैलकुलेटर में, डिवीजन बाय 5, डिवाइड का बटन प्रेस करें, 5 लिखें, इक्वल का बटन प्रेस करें, यू विल गेट 55। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगेन आप देखें, जो भी नंबर्स हैं जिनके जो लास्ट डिजिट हैं, अगर उसके लास्ट में 0 और 5 आते हैं तो डेफिनेटली वो नंबर 5 पे डिवाइड होंगे। अब दोबारा 80 को 5 से डिवाइड करेंगे, आपको ये मिलेगा, फिर 55 को 5 पे डिवाइड करेंगे, आपको ये मिलेगा। अब ये चीज़ आपकी फ्रैक्शन में लिखी, रेशो में इसको दोबारा लिखेंगे किस तरह से, रेशो फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख देंगे, तो इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट देखें आपके पास क्या है, दिस इज़ 27 मिनट डॉट 30 सेकेंड्स, 1 आवर। इसका मतलब एक टर्म ये है और दूसरी ये है, ये कॉमा एक्चुअली इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, द वे दिस क्वेश्चन इज़ दिस। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यू शुड नो इन 1 आवर वी हैव 60 मिनट्स। ठीक है, 1 घंटे में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, और अगर मैं ये बोलूँ कि इसको वापस सेकंड्स में दोबारा से यहाँ किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो हम इसको देखें, इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, 60 1s are 60, ये 1 है, 60 1s are 60। अगर हम देखें तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट 3600 सेकंड। तो इस तरह से हम इसको एक जो जैसे आपको पता है कि
प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम इसको एक स्मॉलेस्ट यूनिट में लेके जा रहे हैं, तो इसका भी हम एक स्मॉलेस्ट यूनिट में लेके जा रहे हैं। दैट 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। ये हमने कन्वर्ट कर लिया। अब इसकी बारी है, बिल्कुल उसकी जैसे हमने सॉल्व किया, सिमिलरली द रूल विल बी सेम। नाउ दिस इज़ 27 मिनट 30 सेकेंड। अब 27 मिनट्स को पहले सेकेंड में ले जाएं। ऑफ कोर्स व्हेन यू कन्वर्ट इनटू सेकेंड यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 60 और ये 30 सेकेंड एज इट इज़ आ जाएगा। अब सेकेंड, इसके तो ऑलरेडी सेकेंड्स यूनिट थे, इसके भी सेकेंड बन जाएंगे और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1620 आएगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1650 सेकेंड्स। अब दोनों की जब कन्वर्जन कंप्लीट हो जाती है तो सबसे पहले इसको देखें, इसका जो सोल्यूशन है वो ये है। पहले इसको लिखेंगे और ये 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। इनकी कटिंग पहले 0 से कैंसिल हो गया, अगेन ये 5 से कटिंग हो रही है। ये वैसे पहले इसको वैसे लिख दें, 5 3 15, 5 3 15, उसके बाद 5 7 35, 5 2 10। अब ये 3 पे कैंसिल हो रहा है, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 4 12। फर्दर कैंसिलेशन इज़ नॉट पॉसिबल, सो यू कैन ईजिली राइट इन दिस फॉर्म और कॉमा दिस वे, या तो कॉमा के साथ लिखें या बी पार्ट करके ऐसे लिख दें फ्रैक्शन की फॉर्म में। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1। नाउ दे बोथ आर हैविंग द सेम यूनिट्स। लकीली अगर सेम यूनिट है फिर हमें किसी कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं होती। तो हम लिखेंगे डिग्री रेशो डिग्री, बिकॉज दिस लिटिल होल लाइक स्मॉल, ये जो लिखा हुआ है साइन है, ये सिंबल किस चीज़ का, ये डिग्री का साइन है। अब पहले 75 लिखें, 2 2 5, ये दोनों के लास्ट में 5 है, डेफिनेटली इट विल कैंसिल विद 5। 5 1 5, 5 5 25, 5 4 20, 5 5 25, 5 3 अब 5 से नहीं हो रहा, इसको 3 पे करेंगे, 5 पे भी हो रहा है बल्कि, 5 3 15, 5 9 45 अगेन। अब तो 5 पे हो नहीं सकता, सो 3 1 3, 3 3 9। ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल, राइट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। सो विल सी फ्रॉम द बुक क्वेश्चन नंबर 2। In a class of 60 students, 25 students are girls and remaining students are boys. Compute the ratio of boys to the total students, boys to the girls. They want to ask you, in a class of, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 60 है, जिसमें से 25 स्टूडेंट्स जो हैं वो गर्ल्स हैं। हमें रिमेनिंग स्टूडेंट नंबर 1 मालूम करने हैं, कितने जो बॉयज़ हैं यहाँ पर। उसके बाद बारी बारी रेशो मालूम करनी है। ये फर्स्ट पोर्शन है और ये इसका सेकेंड है, मीन्स बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट और बॉयज़ टू गर्ल्स। जब जब ये रेशो का वर्ड यूज़ करते हैं, जब यहाँ पर 2 के जो है ये वर्ड यूज़ होगा कि आपने रेशो मालूम करना है, तो ये रेशो की जगह ये 2TO2 को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ओके, अब देखें यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, 60, नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है, 25। अब ऑफ कोर्स नंबर ऑफ़ बॉयज़ मालूम करने, तो 60 - 25 करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू फॉर बॉयज़। नाउ द वेरी फर्स्ट पार्ट, रेशो मालूम करनी है, बॉयज़ रेशो टोटल स्टूडेंट्स। बॉयज़ हमारे पास कितने हैं, 35 और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 60। इनको कैंसलेशन कर लेते हैं, इनकी 5 7 35, 5 1 5, 5 2 10। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। उन्होंने हमसे नहीं कहा कि राइट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। सेकेंड इसका पोर्शन था बॉयज़ रेशो गर्ल्स, बॉयज़ आर 35 एंड द गर्ल्स आर 25। नाउ 5 7 35 एंड 5 5 25। इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, ना ही रेशो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, बिकॉज दे डोंट आस्क अस, हमें इतना ही काम करना है, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए। योर क्वेश्चन नंबर 3 इज़, इफ़ 3 ब्रैकेट 4x - 5y इज इक्वल टू 2x - 7y, फाइंड द रेशो x रेशो y। इसमें देखिए मैथ्स में जब जब आपके पास इफ़ का एक वर्ड आता है, तो इफ़ का मतलब इंग्लिश में अगर है, जबकि मैथ्स की टर्म्स में हम इसको इन्फॉर्मेशन में लेंगे, I for if and I for information, like what the given information you have in your question, this is the given information and this is you have to find, you simply have to find x ratio y, और ये सारी की सारी आपके पास क्या है, given information। और जितने भी स्टेटमेंट या वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन हैं, वट एवर द इन्फॉर्मेशन यू आर हैविंग, यू हैव टू ऑलवेज यूज़ दैट। मीन्स जो चीज़ आपको पता है उसी को यूज़ करके आप, जिसका नहीं पता उसको आप फाइंड आउट करेंगे। डेफिनेटली जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको आप पहले तो कुछ नहीं कर सकते, आपको जो इन्फॉर्मेशन उसी को यूज़ करेंगे। तो याद रखें, ये इफ़ का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन हैं। चलें अब देखेंगे कि आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या है। हमें पता है कि ये एक हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, हम इसी को यूटिलाइज़ करेंगे और हम अपना जो अननोन वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास जो अननोन है हम लिखेंगे पहले ये जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन थी, या हमने क्या किया कि पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 4 12x, 3 5 15y, 2x - 7y। अब क्या करेंगे, 2x यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव, -7y एज इट इज़, -15y पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 8y,
और ये क्या हो जाएगा 10x। अब क्या करेंगे, ये y मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा डिवाइड होगा, यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई है, वहाँ पर क्या होगा डिवाइड होगा। इसकी कैंसलेशन कर दें, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, तो ये इसका आंसर है। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई वांट टू टेल यू इन दिस क्वेश्चन। अब देखें इस क्वेश्चन में जो मेन जो चीज़ है, ही इज़ आस्किंग टू फाइंड x रेशो y। लेकिन इन केस अगर आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वो आपसे कहे कि y रेशो x मालूम करें, तो फिर आप क्या करेंगे। लाइक दिस इज़ नॉट द गिवन क्वेश्चन, बट इन केस इफ़ द क्वेश्चन गेट चेंज, तो मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रही हूँ। वो हम इस क्वेश्चन के बाद या इस स्टेप के बाद क्वेश्चन को चेंज करेंगे। यू हैव टू फाइंड y रेशो x, तो हम y को यहीं रहने देंगे, x मल्टीप्लाई यहाँ पर आके क्या होगा डिवाइड होगा, और 8 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसकी कैंसिलेशन करेंगे, तो 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 एंड दिस इज़ y बाई x। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये होगा y रेशो x और यहाँ पर क्या होगा 5 रेशो 4। तो इस चीज़ को याद रखें कि अगर वो आपसे कहता है कि y रेशो x मालूम करें, तो इट मीन्स आपने y को यहीं रखना है और x उसके नीचे लेकर के आना है, और अगर x रेशो y मालूम करना है तो x यहीं रहेगा और y यहाँ पर उसके नीचे आ जाएगा। सिंपल ये जो चीज़ आपने करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट यू हैव टू फाइंड। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आपने p मालूम करना है। इफ़ द रेशो दिस, यानी कि ये कंप्लीट एक रेशो है, एंड दिस आर इक्वल, मीन्स ये और ये दोनों बराबर उसने बता दिया है। दिस इज़ द इंफॉर्मेशन थ्रू विच वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p हमने मालूम करना है और ये हमें पता है कि ये एक रेशो है और ये भी एक रेशो है और ये दोनों क्या हैं इक्वल हैं। तो अभी इन दोनों को इक्वेट करके हम अपनी p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखें यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, ये हमारे पास गिवन है, हमें पता है इसको इस तरह से डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे, और ये है 3 रेशो 4। दीज आर 2 फ्रैक्शंस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसको यहाँ पर लिखें, इसको यहाँ लिखें। 4 2 ज़ा 8p, 4 5 ज़ा 20 और 3 3 ज़ा 9p, 3 4 ज़ा 12। 8p यहीं पर रहेगा, 9p प्लस है यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, 12 यहीं पर है, 20 पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव होगा। ओके, यहाँ पर जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट प्लस माइनस माइनस, p आएगा सिंपल, 9 minus 8 1, the greater number sign, that is negative. Then 12 minus 20, that will be minus 8, negative will be cancelled, so you will get p is equal to 8. So we're just moving towards the next question, that is question number 5. If the ratio this are and this are equal, देखें ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। You see what is the difference in the question and how they get confused you, how they make you confused. Actually you people should not be confused. See यहाँ पर सिर्फ p है, यहाँ पर x है, यहाँ की जो ये स्टेटमेंट है वो पहले लिखी गई है और ये स्टेटमेंट बाद में लिख दी गई है। अदरवाइज देयर इज़ नो मोर डिफरेंस इन दीज 2 क्वेश्चंस। तो आप देखें, शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। यू हैव टू फाइंड x और गिवन आपके पास ये है। ऑफ कोर्स ये रेशो है, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसको 5 को इससे मल्टीप्लाई करें, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें। 5 3 ज़ा 15x, 5 1 ज़ा 5, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 15x एज इट इज़। ये 8x पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव, 5 यहाँ प्लस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव। ओके, आप थोड़ा ओवर कर रहे होंगे बिकॉज हमारे यहाँ पाकिस्तान में कह लें कि दिस इज़ द सिस्टम, लाइक हम पॉजिटिव नहीं कहते, हम प्लस कहते हैं, बट जबकि एक्चुअली जो प्लस है वो एक ऑपरेशन है, बिकॉज वी आर हैबिचुअल ऑफ सेइंग, बट समटाइम आई ट्राई टू से इट पॉजिटिव और नेगेटिव। जबकि इस सिंबल को या इसको जब हम जब हम ये कहते हैं कि ये एक नंबर की बात करते हैं, तो ये एक हम इसको पॉजिटिव नंबर होते हैं और नेगेटिव नंबर होते हैं, प्लस नंबर या माइनस नंबर नहीं होते, क्योंकि प्लस और माइनस एक ऑपरेशंस हैं। जबकि जो नंबर्स हैं तो हम उसे ऐसे प्रोनाउंस या ऐसे उसको कहना चाहिए, वी शुड स्पीक लाइक दैट, अ पॉजिटिव नंबर और अ नेगेटिव नंबर। बट बिकॉज हमने स्टार्टिंग से पढ़ा ही ऐसे होता है, इसलिए हम जो है ये मिस्टेक कर देते हैं। पर अगर आप ये शुरू से ही अपनी प्रैक्टिस बनाएं, इसको थोड़ा कोशिश करें कि वर्ड को या इसको ऐसे ही बोलना चाहिए, अ पॉजिटिव नंबर और अ नेगेटिव नंबर। बट वही बात है कि मैं बार बार इस चीज़ को कभी प्लस में ले जाती हूँ। बट ओके, नाउ 15x एज इट इज़, 8x इज़ पॉजिटिव एंड देयर इट विल बी नेगेटिव, 5 इज़ पॉजिटिव एंड हेयर इट विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये सब्ट्रैक्शन हो रही है, ये प्लस हो रहे हैं क्वेश्चन, इस स्टेप पे ऐसे बोलना चाहिए। तो ये प्लस माइनस माइनस, तो ये 7x आएगा, यहाँ भी माइनस होगा, 7 इज़ मल्टीप्लाइंग और यहाँ पर क्या होगा डिवीजन होगी, तो 7 को 7 से कैंसिल करेंगे, यू विल गेट 1। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अ टोटली डिफरेंट क्वेश्चन, मतलब जितने भी क्वेश्चन थे उनसे थोड़ा हट के है क्वेश्चन, बट नॉट एक्चुअली डिफिकल्ट क्वेश्चन। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5:8। उसने बोला कि 2 नंबर हैं हमारे पास, और वो किस रेशो में है आपके पास, 5:8 में है, ठीक है, उनकी जो रेशो है 5:8 है। ओके, इफ़ 9 इज़ एडेड टू ईच नंबर, मतलब ये कोई 2 नंबर हैं,
और वो कह रहा है कि 9 इन दोनों में ऐड कर दो। वी गेट अ न्यू रेशो, हमें जो एक नई रेशो मिलेगी वो ये है। तो उसने साथ ही बोला फाइंड द नंबर्स। ठीक है, दोबारा देखें, 2 नंबर्स हैं जो इस तरह लिखे हुए हैं और साथ में उसने सेकंड कंडीशन बताई है कि इन दोनों नंबर्स में 9 को ऐड कर दें और साथ ही कह रहा है कि एक नई रेशो मिल जाएगी, तो नंबर्स मालूम करें। अगर मैं इस एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूँ या देखें कि एक्चुअली वो क्या कहना चाहते हैं या हम क्या करेंगे इसका, तो देखिए हम क्या करेंगे। वो ये कह रहा है कि 2 नंबर हैं, देखिए 5:8, ठीक है, ये 2 नंबर हैं और साथ ही उसने कह दिया कि इन दोनों में ऐड कर दो, किसको, 9 को ऐड कर दो। तो अगर तो हम इसको 9 में ऐड कर देते हैं इस तरह से, और साथ ही उसने कह दिया कि आपको एक नई रेशो मिल जाएगी जो कि क्या है 8:11 इस तरह से। और आप गौर करें तो ये तो अगर हम इनको प्लस करते हैं तो हम यहाँ से कोई नंबर्स तो फाइंड आउट कर नहीं सकते। तो इसलिए वैसे सादा सवाल ये है, लेकिन अब इसका कोई नंबर तो हम नहीं मालूम कर सकते, तो हम कुछ से सपोज़ करते हैं, क्योंकि नंबर मालूम करने की बात होती है, कोई एक्स की लैंग्वेज में बात हो रही है, कोई एक्स वाई की वो बात करना चाह रहा है। तो अब इसको करने का तरीका क्या है, ये देखें। हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है जो उसने सबसे पहली लाइन लिखी हुई थी वो थी कि रेशो बिटवीन 2 नंबर्स जो थी वो क्या थी, 5:8। उसने साथ ही हमें कहा कि नंबर 2 भी एडेड, हमने नंबर कौन सा ऐड करना है, 9 ऐड करना है। हमें न्यू रेशो क्या मिलेगी, 8:11। अब देखते हैं कि अब इस तरह से तो मैंने जब वो चीज़ आपको बताई है कि 5:8 कोई 2 नंबर हैं, फिर उसमें कोई 9 को ऐड कर दें, आपको नई रेशो मिल जाएगी। तो यहाँ तो आप कभी भी इसका कोई नंबर्स तो मालूम नहीं कर सकते। तो अब हम सवाल को कैसे मोल्ड करेंगे या हाउ वी हैव टू सॉल्व इट। तो वी सपोज़ दैट, लाइक हम ऐसा सपोज़ करते हैं कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो 5x है। हम यही जो हमारा ओरिजिनल जो नंबर था उसमें उसके साथ लिख देते हैं कि ये 5 नहीं है बट दिस इज़ 5x, और जो सेकंड नंबर है दैट इज़ 8x। अब ये जो सारी कंडीशंस यहाँ लगी हुई ना, वो इस पर इन नंबर्स पर अगर हम एक्चुअली हम अप्लाई करेंगे, हमारे पास ये जो 2 नंबर अब आए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, हम 5x में और 8x में एक नंबर ऐड करेंगे जो यहाँ पर हमने इस स्टेप में बताया, 9 को ऐड कर देंगे। अब उसने कहा था कि ऐड करने के बाद ये एक नई रेशो बिल्ड हो जाएगी, एक नया रेशो फॉर्म होगा जो कि बराबर होगा 8:11 के। तो ये वो कंडीशन बन गई। अब इसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 11 को इससे और 8 को इससे, 11 5 55, 11 9 99, 8 8 64, 8 9 72। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। मैंने वो स्टेप को रिपीट किया है ताकि आपको मतलब देखने में प्रॉब्लम ना हो। Now 55x will be as it is, 64 is positive and there it will be negative. Now 99 is positive and here it will be negative. Plus minus 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 करेंगे तो you will get minus 9x और यहाँ पर भी minus होगा. Minus will be cancel, negative sign will be cancel both side. तो 9 is multiplying and there it will be divided. तो 9 3 is 27. बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। हमने एक चीज़ सपोज की थी कि what is the first number. So the very first number is 5x. हमें जो x की वैल्यू आई है वो 3 आई है, तो यहाँ पर x की वैल्यू लिख दें 3, 5 3s are 15. Now what was the second number that we have to suppose actually, that is 8x. तो अभी 8x है, 8 3s are 24. तो finally we got the two new numbers that is 15 and 24. तो ये वो 2 नए नंबर्स हमारे पास आए हैं जो एक्चुअली हमने फाइंड आउट करने थे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यू टू द कॉपी ऑफ दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू एक्चुअली, इफ़ 10 इज़ एडेड टू। अब देखें ये कैसे क्वेश्चन को चेंज करते हैं, ये दोनों क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पर 9 इज़ एडेड, इसका सेकंड जो लाइन थी वो स्टार्ट हो रही थी, जबकि यहाँ पर इसने शुरू में कह दिया इफ़ 10 इज़ एडेड टू ईच नंबर लाइक दिस। यहाँ पर 5 ऐड था, यहाँ पर 4 13 है, यहाँ पर 9 ऐड करना था, यहाँ पर 10 ऐड करना है। वी गेट अ न्यू रेशो 1:2 और यहाँ पर नई रेशो क्या थी 8:11। सो बोथ आर सेम। कह लें कि बस राइटिंग में थोड़ा बहुत चेंज है कि कुछ लाइंस को आगे पीछे करके क्वेश्चन को चेंज बना दिया। तो इनका मकसद एक्चुअली देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेक्निक, ये जो क्वेश्चन ये पब्लिशर ये जो करते हैं जिन्होंने बुक बनाई है, दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट इन दिस वे। एक्चुअली ये आपके लिए अच्छा है कि अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी बहुत चेंज हो तो आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, या आप थोड़ा सा आदी हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, चलें अब हम देखते हैं हमारा क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें क्या है कि ओके, नेक्स्ट देखें हमारे पास क्या है यहाँ पर। सबसे पहले आपने क्या कहा था, रेशो ऑफ द टू नंबर्स। रेशो ऑफ द टू नंबर्स आपके पास क्या है 4:13, और उसके बाद क्या है रेशो ऑफ नंबर 2 भी एडिड क्या है 10 हमने ऐड करना है। ओके, फर्स्ट नंबर जो हमने लिया वो 4x होगा, इसी को एक साथ लिख दें, और जो सेकेंड नंबर है वो 13x होगा। नाउ अच्छा, यहाँ पर एक जो लाइन है मिस हो गई है, न्यू रेशो जो हमने लिखनी थी, न्यू रेशो क्या बनेगी 1:12, वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। ओके, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 4x और 13x दोनों में क्या ऐड करेंगे 10 ऐड करेंगे, और नई रेशो क्या है 1:12।
उसके बाद इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें, ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 2 4 8, 2 10 20, और उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको 2 4 8, 2 10 20 चीज़ों को शिफ्ट करेंगे, एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। जो हमारा फर्स्ट नंबर था वो था 4x, तो यहाँ 4 की वैल्यू एज इट इज़, एक्स की वैल्यू 2 लिखेंगे, 4 2 8। सेकेंड नंबर 13x है, एक्स की वैल्यू 2 है, 13 2 26। हैंस द नंबर्स आर, और द रिक्वायर्ड नंबर दो तरह से लिख सकते हैं। हैंस द नंबर्स आर, जैसे यहाँ लिखे हुए हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर्स आर 8, 26। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट द क्वेश्चन वी हैव एक्चुअली। सो हियर यू हैव योर क्वेश्चन, find the cost of 8 kg of mangoes if 5 kg of mangoes cost rupees 250. Okay, you should have to find the cost of 8 kg mangoes, और जो 5 kg mangoes हैं वो कितने के हैं, 250 के हैं। आपने 8 kg की मालूम करनी है प्राइस, कि 8 kg जो है वो कितने के हैं, उनका कॉस्ट मालूम करनी है, और आपके पास 5 kg की इन्फॉर्मेशन आपको है। वैसे तो इसको एक बहुत आसान तरीका है, यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, जो आपने लोअर ग्रेड्स में आपने पढ़ा था उस तरह से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। बट हेयर वी हैव अनदर मेथड, बिकॉज हम रेशो का चैप्टर पढ़े हैं, वैसे प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी कर सकते हैं और इस तरह से। यहाँ पर 2-3 तरीके हैं सवाल को करने के। चलें, सो हेयर अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो मैंगोज़ हैं कितने हैं, यानी कि आप अमाउंट ऑफ मैंगो लिख सकते हैं, कितनी है अमाउंट ऑफ मैंगोज़ 5 kg, और उन्हीं की प्राइस ऑफ मैंगोज़ कितनी है, वो क्या है 250। और दोबारा से जो मैंगोज़ की एक और दफ़ा जो प्राइस उसने हमने फाइंड आउट करनी है वो 8 kg उसकी अमाउंट है, हमें पता है, और हमने उसी की इसकी रेलेवेंट हमने उसकी प्राइस मालूम करनी है। तो देखें हम अगर इसको रेशो की फॉर्म में लिखते हैं, लेट सबसे पहले क्या है 5 kg, उसके बाद क्या, एक तरफ देखें हम कभी भी मिक्स नहीं करेंगे कि यूँ प्राइस यूँ लिख दें, हम एक तरफ केजीज़ को रखेंगे और एक तरफ हमें क्या करना है उसकी प्राइसेस को। मींस 5 kg की जो प्राइस है वो कितनी है आपके पास, देखिए 5 kg की प्राइस 250 है और 8 kg की प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है, इस तरह से लिखेंगे। अब चूँकि ये रेशो है इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दें, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 5x और 8 को 250 से मल्टीप्लाई करें, 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, वहाँ पर क्या होगा डिवाइड होगा। अब इसको देखें ये कटिंग हो जाएगी, 5 1 5 और 5 5 20, मीन्स ये हो जाएगा 5 1 5, 5 5 25 और ये 0 एज इट इज़। अब 50 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 400, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा, और साथ ही 400 के साथ आप क्या लिख देंगे, रुपीज़ लिख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ओके, नाउ हियर इज़ द क्वेश्चन नंबर 9। आपने मालूम क्या करना है, पहले हम देखते हैं गिवन या हमारे पास हमने फाइंड आउट क्या करना है। तो यहाँ देखिए हमने क्या करना है, इफ़ a रेशो b इज़ इक्वल टू 7/6, अगेन इफ़ मीन्स इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन क्या है कि a रेशो b की जो वैल्यू आपके पास क्या है 7/6 है, और फाइंड द वैल्यू, जो हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है, मीन्स इसकी वैल्यू मालूम करनी है 3a + 5b और 7b - 5a। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मींस ये इन्फॉर्मेशन है और इसकी कोई वैल्यू, जैसे हम वो हमसे कहते हैं कि x की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो हमें इसकी क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास तो देखें जो इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पुट करेंगे कि a/b की वैल्यू 7/6 है। तो अगर हम यहाँ पर हमें एक ऐसा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, हमें इस तरह का एक चीज़ यहाँ बनानी पड़ेगी। मीन्स अगर मेरे पास ये फ्रैक्शन है, अगर मैं अप एंड डाउन इस पूरी फ्रैक्शन को ऊपर और नीचे दोनों को b से डिवाइड कर दूँ, तो देखिए यहाँ भी b से डिवाइड किया, इस फ्रैक्शन यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को b से डिवाइड कर देते हैं। अब जब b से डिवाइड करेंगे, इतनी सारी फ्रैक्शंस आ गई हैं विच विल मेक्स यू ट्रबल, लाइक आप इसे क्या कर सकते हैं, ये जो बड़ी सी फ्रैक्शन है यू कैन कन्वर्ट इनटू दिस डिवीजन साइन विच विल मेक योर लाइफ सो सिंपल ऑलवेज। ओके, इसको यहाँ लिखें और इसको यहाँ लिखें। अब आपको पता है कि हमने मैथ्स में एक रूल्स पढ़ रखे हैं, जैसे a + b/c है, सो वी कैन सिंपली राइट a/c + b/c, नो मैटर देयर इज़ अ पॉजिटिव और द नेगेटिव साइन, इफ़ देयर इज़ अ नेगेटिव साइन यू कैन ऑल्सो राइट लाइक a/c - b/c। सिमिलरली हम इस फॉर्मेट पे लिख सकते हैं 3a/b and 5b/b। Now division is moving with it, 7b/b and 5a/b. You can see b is cancelled with this b and here b is cancelled with this b. Now can we write like this a/b? Of course we can. ये हो गया, ये भी एज इट इज़ और ये भी a/b। अब वो और से देखें तो हमारे पास जो a/b की वैल्यू है वो यहाँ पर क्या है 7/6। मीन्स टू से, अभी तो मैंने इस चीज़ को दोबारा यहाँ पर रिपीट करके लिखा है सो दैट इट विल बी ईजियर टू सी इट अगेन। तो आप देखें कि ओके, यहाँ पर उसी लाइन को जो प्रीवियस लाइन थी उसको रिपीट किया गया है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a/b दैट इज़ 7/6। तो यहाँ पर a/b की जगह 7/6 लिखें। अब इसको देखें ये सॉल्व हो रहा है, 3 1 3, 3 2 6, 7/2 + 5।
ये 7 है, डिवीजन साथ साइन चलता जा रहा है, 5 7 35/6 और क्योंकि ये फ्रैक्शन है मैंने इसके नीचे लगा के 1 इसको फ्रैक्शन बना दिया है। टेकिंग द एलसीएम 2 1 2, then 7 1 7, 5 2 10, 6 1 6, 7 6 42, 35 1 होप सो आपको ये प्रोसेस आता होगा कि हम मुझे लगता है इसको सॉल्व करने के 2 और भी मेथड हैं। मैं इसको कैसे सॉल्व कर रही हूँ, जो हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें, दैट इज़ 2 1 2। उसके बाद इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करें, 7 1 7 और 5 2 10। बाद में इन दोनों को प्लस कर दें और 2 एज इट इज़, सेम प्रोसेस हियर। इस सॉल्यूशन के बाद आपको ये मिलेगा। और डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है जब 2 फ्रैक्शंस होती हैं डिवीजन है मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो जो आपका राइट साइड की जो फ्रैक्शन है वो उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 6/7, 2 1 2, 2 3 6, दैट इज़ 17 3 51, 7 1 7। तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल सा क्वेश्चन है। कंप्लीट द फॉलोइंग 24/7 6/x देन 4x आपने फाइंड आउट करना है। आप क्या करेंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 24x, 7 6 42, अब 6 4 24। अब क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई है वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 6 7 42। तो सिंपल आपने एक्चुअली 4x मालूम करना है और कुछ भी नहीं करना। तो 4x यहीं पर रह जाएगा, 6 वहाँ जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास 4x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखें, इसका पार्ट है हमारे पास यूँ फ्रैक्शन 2 दी हुई हैं, आपने ay मालूम करना है, ay सिर्फ मालूम करना है। तो पहले हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आप ज़रा गौर से देखें क्योंकि आपको ay मालूम करना है तो 5 मल्टीप्लाई है वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। तो 5 1 5, 5 9 45, x भी एज इट इज़ आ जाएगा एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ay। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 5q मालूम करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो यहाँ पर 5 9 45, pqm एज इट इज़, 18 2 36, plm एज इट इज़। नाउ बिकॉज यू हैव टू फोकस व्हाट यू हैव टू फाइंड, एक्चुअली यू हैव टू फाइंड 5q। तो 5q को एज इट इज़ रहने दें, बाकी हर चीज़। वैसे अगर इसको ब्रेक मैंने दोबारा से कर दिया ना भी करें, अच्छा इसको ब्रेक करना बल्कि ज़रूरी है क्योंकि आपको चाहिए 5q, तो इसलिए 45 को ब्रेक करेंगे, 9 5 45, 5q को यहीं रहने दें, बाकी हर चीज़ उठा के नीचे ले जाएं। अब जो सेम क्वांटिटीज़ हैं उनको कैंसिल कर दें, 9 1 9, 9 4 36, 4l इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द लास्ट क्वेश्चन इज़, सी ये लास्ट क्वेश्चन आपके पास, आपने सिंपल इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ रेशोज़ की प्रोपोर्शन की फॉर्म में आपको इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दिए हैं। एक्चुअली प्रोपोर्शन का मतलब होता है जब 2 रेशोज़ हम जब इस फॉर्मेट में लिखते हैं, जब हमारे पास एक रेशो ये है, एक रेशो ये है, जब इस ये फॉर्मेट है इसका, या जब इस 2 रेशोज़ को कंबाइन करते हैं, इक्वेट करते हैं, तो दैट विल, और ये जो रिलेशन है दैट दिस विल बी कॉल्ड प्रोपोर्शन, और इक्विवेलेंस ऑफ 2 रेशो इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। अब देखें इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ये रेशो है तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लें, इक्वल का साइन लगाएं। इसका एक और भी तरीका होता है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता देती हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, सिंप्लीफिकेशन करें, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखें आपके पास क्या है, यहाँ देखें ये, अब ये देखें कि ये भी तरीका होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन्स अगर इस तरह की फॉर्मेट में क्वेश्चन है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब देखें इस तरह से लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब है कि जो ये नंबर जो सेंटर पर लगते हैं ये मीन है और ये जो कॉर्नर्स हैं ये एक्सट्रीम्स हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, और एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करें। ये 3 3 से कैंसिल, 2x/5, 7 7 से कैंसिल, ये 5 दोनों को डायरेक्ट आप इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। 5 5 से क्या होगा, कैंसिल। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो 5 देखें यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, फिर भी कैंसिल हो जाएगा। तो वाई नॉट कि आप इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दें। 2x इज इक्वल टू 3x माइनस 5, सिंप्लीफिकेशन है, 3x पॉजिटिव है यहाँ पर नेगेटिव, इनको माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा और दोनों तरफ माइनस की कैंसिलेशन कर दें। नंबर 3 इज़, इसमें देखें कि आपके पास अगेन बिल्कुल द सेम फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन like the previous one, product of mean is equal to product of extreme. The most important thing in this question is that sometime what the student has done, like वो लिखते हैं product of mean, पर वो इस मीन की जगह वैल्यू एक्सट्रीम की लिख देते हैं। देखिए यहाँ क्लियर कट लिखे हैं मीन, मीन का मतलब कि जो आपकी सेंट्रल वैल्यू है, एक्सट्रीम मतलब जो आपकी कॉर्नर्स हैं। तो मीन के नीचे आपको मीन की मल्टीप्लिकेशन ही लिखनी है और एक्सट्रीम के लाइक कॉर्नर्स उसके नीचे आपको इन्हीं की मल्टीप्लिकेशन, पता चले यहाँ लिखा मीन है और इसको उधर कर दिया, विल बी रॉन्ग एक्चुअली इन अ वेरी फर्स्ट स्टेप। ओके अब सिंपल देखें, सिंप्लीफिकेशन करने से पहले थोड़ा देख लें, जहाँ जहाँ कैंसिलेशन हो तो पहले कैंसिल कर लें ताकि आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाए। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 2 1 2, 2 2 4, तो रिमेनिंग नंबर 5/3। अब ये 2 एज इट इज़, ये एज इट इज़, नीचे x+4 है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको यहाँ ले जाएँ, ये आ जाएगा 3 2 6, 6 1 6, 6 3 18, 5 1 5, 5 4 20, 6 पॉजिटिव है यहाँ पर नेगेटिव, 20 पॉजिटिव है यहाँ पर नेगेटिव। इसको सॉल्व करेंगे 38 आएगा, दोनों तरफ x की माइनस की क्या होगी, नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा। नाउ दिस वन नंबर 4 क्वेश्चन,
अगेन प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब देखें यहाँ पर जो आपके पास मीन है, ये दो सेंट्रल के नंबर हैं, इनको लिखें और ये कॉर्नर्स के नंबर यहाँ लिख दें। यहाँ पर क्या होगा, ये चीज़ ये पी प्लस क्यू जो है डिवाइड है, वहाँ पर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। ये चीज़ मल्टीप्लाई है, नीचे आके क्या हो जाएगी डिवाइड। आपको ऊपर कुछ नहीं हो रहा, नीचे एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, दैट इज़ पी माइनस क्यू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। चेक करें ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। येलो कलर आपको नज़र आ रहा होगा, दोनों की कैंसिलेशन बिकॉज दे आर सेम। और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगी क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो एक पावर ख़त्म हो जाएगी, एक रह जाएगी। और यहाँ पर क्या है पी प्लस क्यू, इन पर फॉर्मूला अप्लाई कर दें, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, आपका फॉर्मूला क्लोज हो गया। एंड here this is the value of x. This is the last part of the exercise of the question. Okay, again product of mean is equal to product of extreme. ओके मीन की मल्टीप्लिकेशन करें और एक्सट्रीम की। सिंपल देखें 11 16 सा 176, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -11x, ये हो जाएगा -16x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, और 8 को 25 से 200, देन इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इज़ -8x, इसको इससे कर लें -25x, x माइनस माइनस प्लस और x आर एक्स स्क्वायर। दोबारा से जो आप इसको यहाँ लेके जाएंगे तो अगर कभी आपके पास इक्वल का साइन है, यहाँ वहाँ दोनों सेम साइन है, तो डायरेक्ट कर दें इनको कैंसिल। आफ्टर कैंसिलेशन हर नंबर जो यहाँ रखा हुआ है विद एन ऑपोजिट साइन उसको उठा के यहाँ ले जाएँ, उनके साइन चेंज हो जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन है, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा सारी की सारी वैल्यू जितने भी ये x की टर्म्स हैं इन सब को -11 -16 +8 +25 इनको एक ही दफ़ा कैलकुलेटर में लिखें, इक्वल का बटन प्रेस करें, यू विल गेट 6x। 24 नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई है, वहाँ पर क्या होगा डिवाइड होगा, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो ये थी आपकी 3.1 विद कंप्लीट सोल्यूशन विद ऑल द कंप्लीट क्वेश्चंस विद द डेफिनेशन। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।